सत श्री अकाल दोस्तों। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਤਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਧਿਆਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ। ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੇਵਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਅੱਲੋ ਅਲਖ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, गुड़ दीना मीठा। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए। बानी सानू यह सिखांदी है कि असी जिस भी धर्म च जन्म लिया है असी ओनू गहराई नाल समझिए, जानिए, ओदे अध्यात्मिक सिद्धांत की ने, उन्हां नू गहराई नाल समझिए तां ही असी उस खास संस्कृति विच, खास धर्म विच जन्म लिया, ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਦਾ ਖੋਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਵਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਬੀਜ ਦਾ ਇੱਕ ਖੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਖੋਲ ਟੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ बीज अंकुरित नहीं हो सकता। जे बीज ने अंकुरित होना है तो खोल दा टुटना जरूरी है। खोल जेड़ा है वो बीज दी रक्षा वास्ते है, लेकिन असी खोल नो ही सब कुछ समझ लिया। ते गुरबानी जो जो असी ध्यान करने आ, सानू गुरबानी दी सोझी आंदी है, हौली हौली गुरबानी चंगी लगती है और लोकां नू जो मन विच भरम है कि असी गुरबानी पढ़ रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बिल्कुल ठीक कर रहे हो। गहराई नाल जानो कि गुरुआं ने सानू की उपदेश दिया, क्योंकि जेड़ा सच है, सत्य है, वो नहीं बदलदा, वो हमेशा तो एक ही है। ऐसे वास्ते श्री गुरु नानक देव जी ने कहा आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो नहीं बदलदा। दसन दा तरीका या जेड़ा जिहदी राही वो सत्य सच दसिया जा रहा है वो बदल सकता है। ऐसे लिए कबीर जी ने क्या, जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। वो खोल है, खोल नू की करना है, ओदे अंदर जो सार वस्तु है, तत्व वस्तु है, ओदे नाल जुड़ना है, ओनू पाना है। ते इसलिए जो जो मैनू भी समझ आ रही है गुरबानी दी, ते मैं गुरबानी दे विचों ओही सारे विषय जो अज असीं सुन रहे हैं वर्कशॉप विच, सब गुरबानी च लिखे हुए ने। पहले ही गुरुआं ने पहले ही वो विषय सानू दस दिते हुए ने ते ओही विषय असीं विचार करने उन्हां ते, ताकि साडे अंदर वो गहराई नाल वस जाण। अज मैं तुहाडे नाल जो विषय साझा कर रही हां वो है सर्ब रोग का औखद नाम। नाम सारिया बीमारियां दी दवाई है। औखद दवाई, रोग जिहड़ियां बीमारियां ने, सर्ब सारिया ही बीमारियां दी दवाई है। कोई ऐसी दवाई नहीं है जिहड़ी सारिया बीमारियां ठीक करदी होवे, लेकिन नाम ऐसी दवाई है जिहड़ी सारिया बीमारियां नू ठीक कर देंदी है। कल्याण रूप मंगल गुण गा,
ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਿਆਣ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਜੀਭ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੀਭ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਗਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਦੋ ਨਾ ਵਾਈ ਭੈਣੋ ਨਾ ਪਾਈ, ਏਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਭਇਆ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਦੁੱਖ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਕੱਪੜੇ, ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਤ ਦੁੱਖ ਆਗੇ ਆਵੇ, ਸੋ ਸੁੱਖ ਹਮੂ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਭਾਵੇ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣਾ ਦੁੱਖ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਣ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਨਮਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਆਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੂਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਵੈਦੋ ਨਾ ਵਾਈ, ਵੈਦੋ ਡਾਕਟਰ, ਵਾਈ ਦਵਾਈ, ਭੈਣੋ ਨਾ ਪਾਈ, ਨਾ ਭੈਣ ਨਾ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਮ ਤੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਮ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਲਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪਤਾ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਜਿਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੈ। द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਤੇ कृष्ण भगवान ने ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਲ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ द्रौपदी ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈਏ, ਕੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਚੀਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? परमात्मा ही वधा सकता सी। परमात्मा ਨੂੰ याद किया, परमात्मा ने ਵਧਾਇਆ। और ऐसी कथावां, हजारों कथावां ने कि किसी पशु पक्षी ने भी अगर परमात्मा ਨੂੰ याद किया ना दुख ਦੇ ਵੇਲੇ, ਤੇ परमात्मा ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ अपने पैसे ते मान करने, अपने भैन भरावां ते मान करने, डॉक्टरां ते मान करने, दवाइयां ते मान करने भी है ते बाहर जाके ते असीं ठीक हो ही जाना है। ऐस वधिया डॉक्टर कोल गया इत्थे ते ठीक हो ही जाना है, इस तो वधिया कोई दवाई नहीं इहदे नाल ते ठीक हो जाना है। लेकिन गुरु साहब कह रहे ने, वैदो ना वाई पैनो ना पाई, एको सहाई राम है। कीता जिस होवे पापा मल धोवे, सो सिमरो प्रधान है। ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ। ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਲ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਗੋਡ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੇ ਗੋਡ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣਾ ਹੈ। और हजारों हजारों ऐसिया उदाहरणा ने जिथे केवल ध्यान करके लोगों ने अपना कैंसर तक ठीक किया। तुसी यूट्यूब ते देखो, अनीता मूरजानी जिन्हें शरीर छड़ दिता और फिर वापस कैंसर दी चौथी स्टेज सी, शरीर छड़ दिता, ऊपर गई, ऊपर जाके वेख्या सारा कुछ कि सानू थल्ले की सिखाया जाता है, ते उत्ते ते बिल्कुल ही अलग चीज़ां ने, ते सानू ते गलत सिखाया जाता है। तो उन्हें क्या मैं वापस जाना है, पर मैं इस शरीर विच वापस किस तरह जावां? ते बीमारी ने खा लिया, तो कहंदे तू वापस जाएंगी ते शरीर ठीक हो जाएगा। ते जो तू वेख्या जाके दुनिया नू दस, बुक पढ़ के देखो, डाइंग टू बी मी, अनीता मूरजानी, ओदे बहुत सारे यूट्यूब ते वीडियो ने। ते मौत दा सामना करके शरीर छड्डन तो बाद वापस शरीर च आई, और फिर अज तक वो लोकां नू सिखा रही है। ते जिन्ने भी ध्यान किया परमात्मा दे चरणां दा, ऐ नहीं कि माला लैके असीं बह जाइए ते असीं ध्यान कर रहे हैं, वो अंदर दी तार जिहदी जुड़ जांदी परमात्मा नाल, वो याद बन जांदी है, ते फिर ओहदे सारे दुख कट्टे जांदे ने। और अगर वो नहीं है ते जेड़े साडे आदि व्याधि उपाधि जेड़े तीन तरह दे रोग ने, जेड़े साडे कर्म रोग ने, कर्म रोग भी परमात्मा कट सकदा है, वैद नहीं कट सकदा। ते जो साधना करदा है, ध्यान करदा है, उस परमात्मा नू याद करदा है, परमात्मा दे शुकराने विच रहिंदा है, ओहदे मन तो पापां दी मैल दूर हो जांदी है, ओहदे सारे रोग दूर हो जांदे ने, क्योंकि वो घट घट विच वसदा है। घट घट वासी सर्व निवासी, घट घट विच है, सब दे अंदर भी वही है। अस्थिर जाका थान है, वो हमेशा स्थिर रहने वाला परमात्मा अस्थिर। हर एक दे अंदर वो वसदा पिया। ताई क्या मेरा वैद गुरु गोबिंदा, कि ए ना वैदा ने की करना, मेरा वैद ते गोबिंद गुरु गोबिंद है, ते जिदा वैद गोबिंद है, ब्रह्मांड दा मालिक जिदा वैद है, फिर ओने ते जन्म जन्म दे पापां दे की जम दे फंदे कट देने ने। हर हर नाम औखद मुख देवे, ओने मेरे मुंह च नाम रूपी औषधि पाई, ते मेरे जन्मा जन्मा दे बंधन कट दिते, मौत दे बंधन कट दिते, जम दे बंधन कट दिते। ते ए छोटियां मोटियां बीमारियां ते वैसे ठीक हो जांदियां ने परमात्मा दा नाम लैने नाल। ते दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने जेड़ा उच्चारण कीती अरदास, ते ओदे च उन्होंने कहा, श्री हर कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए, एक दो चार नहीं, सब दुख जाए, त्याइए, ध्यान करना उन्हां दा। श्री हर कृष्ण त्याइए, इत्थे जपन नूं नहीं कहा, रटन नूं नहीं कहा, त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। जे उन्हां दे दर्शन करन नाल ही सारे ही दुख दूर हो जाएंगे। कोई भी गारंटी नहीं लैंदा कि ए डॉक्टर गारंटी कोई नहीं लैंदा कि तू आ जा तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे।
लेकिन ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ओपन गारंटी लै रहे ने कि तू ध्यान कर, तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, इस गल की गारंटी है। लेकिन फिर भी सानू गुरु ते भरोसा नहीं होंदा, मंत्रियां ते, ज्योतिषियां ते, तंत्र विद्या करन वालियां ते, उन्हां ते भरोसा हो जाता है, पीरां ते भरोसा हो जाता है, कबरां ते भरोसा हो जाता है, गुरु ते भरोसा नहीं होंदा। जरा जिहा कोई दुख आंदा, चंगे चंगे नेमी बंदे टुट जाते ने, ते फिर वो अपने गुरु नूं छड्ड के ते मड़िया मसाना वाल चले जाते ने, बाबियां कोल पहुंच जाते ने कि शायद है मेरा दुख दूर करेगा। लेकिन श्री गुरु अर्जन देव जी ने फैसला सुना दिता, वैदो ना वाई पैनो ना पाई, एको सहाई राम है। मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख देवे, काटे जम की फंदा। और परमात्मा नू किसी दा दुख दूर करन वास्ते कुछ अडंबर नहीं करने पैंदे, ओदी नजर ही बहुत है। ਉਹ ਫਿਰ अगर वैद मिट्टी दी एक चुंडी भी दे देगा ना, ते जे परमात्मा दी नजर है ते ਉਹ दवाई लग जाएगी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ठीक हो जाएगा। ते जे परमात्मा दी नजर नहीं है ना, ते किन्नियां ही दवाइयां ले लो, कोई दवाई असर नहीं करती। फिर डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देंगे ने कि ਹੁਣ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिस वेले डॉक्टर कहते ना कुछ नहीं हो सकता, फिर इंसान ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ याद आती है कि नहीं अजे भी कुछ हो सकता है। परमात्मा चाहे तो सब कुछ हो सकता है, फिर हो भी जाता है जे इन्ना भरोसा होंदा ते। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे टाइम ते एक वैद सुजान सिंह सी, ਉਹ गुरु साहब दे दर्शन करन आंदा सी, दसवंध भी भेटा करदा सी। ते गुरु साहब कोल आया दर्शन करन, ते गुरु साहब ने कहा तू ते दर्शन नहीं करदा, ना तू दसवंध भेटा करना है। उन्हें कहा नहीं, मैं ते हर साल आना, मैं दर्शन भी करना, दसवंध भी भेटा करना। गुरु साहब ने कहा साडे तक ते कदी पहुंचया नहीं। कहने लगा मैं आप आना लैके। तो गुरु साहब ने कहा तू इत्थे लियाना दसवंध, तू दर्शन करना है, लेकिन तू परमात्मा दे सृष्टि विच, परमात्मा ने जेड़ी सृष्टि बनाई है, जेड़े आस पास दीन दुखी ने, गरीब ने, उन्हां ते रहम नहीं करता, तरस नहीं करता। ते गरीब दा मुंह गुरु दी गोलक, ते तू वैद है, ते वैद दा जेड़ा सुभाव है किस तरह दा होना चाहिए। ते इत्थे तेरे दसवंध दी, तेरे पैसे की जरूरत नहीं है, तू जा गरीबां दी सेवा कर, मदद कर, तू वैद है, इलाज कर लोकां दा, गुरु मेहर करेगा। कहने लगा मैं कित्थे जावां। श्री गुरु जी ने कहा तू जिथे तू जिस पासे तेरा मुंह है उस पासे चला जा, आपे तेन पता चल जाएगा कि कित्थे तेरी लोड़ है, ते जिथे तेरी लोड़ है उत्थे टिक जाए। उन्हों चलदा गया चलदा गया चलदा गया, एक जगह एक पिंड विच पहुंचया। चलदे चलदे थके भुखे प्यासे उन्होंने चक्कर आ गया, डिग गया। आस पास लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने जल छिड़किया, पानी पियाया, होश आई, देखिया ते उन्होंने कहा पिंड वासियों ने कि साडे पिंड विच कोई वैद नहीं है, ते असी तुहाडा इस तो ज्यादा इलाज नहीं कर सके, ते चंगा होया तुहानू होश आ गई, तुसी गुरु दे सिख लगदे हो, ते साडे पिंड विच नहीं है, इलाज नहीं हुंदा, सानू बहुत दूर जाना पैंदा है। ते वैद सुजान सिंह नू पता चल गया यही मेरा ठिकाना है, ते उत्थे टिक गए। ते कहन लगे मैं वैद हाँ, मैं इस पिंड विच रवांगा, मैं इलाज करांगा। उस पिंड विच रहन लग गए, इलाज करन लग गए। किसी नू मिट्टी दी चूंडी भी देंदे ने ना, वो भी ठीक हो जांदा, क्योंकि गुरु दा वचन काम कर रहा है। ते परीक्षा दा समय आ गया, काफी टाइम रहे सेवा की, परीक्षा दा समय आ गया, ते पता चलिया दसम पातशाह इस पिंड विच आ रहे ने। बड़ी मन विच उत्साह, और यह भी पता है कि वैद सुजान सिंह दे घर आणगे सिख है। ते एंड टाइम ते जिस वेले दसम पातशाह दे आन दा टाइम होया, ते एक बुढ़ी माई रोंदी हुई आ गई, और उन्हें कहा कि मेरे नाल चलो, मेरा पुत्र बहुत बीमार है, मैं उन्होंने इत्थे नहीं लिया सकती, तुसी चलो, तुसी ओदा इलाज करो, ते वो बच जाएगा, नहीं तो मर जाएगा। हुण धर्म संकट आ गया, की करे, इधर ते दसम पातशाह आ रहे ने, और इधर है बुढ़ी माई विलाप कर रही है कि मेरा पुत्र मर जाएगा। फिर याद किया कि गुरु जी ने मैनू वचन की दिते कि सेवा कर गरीबां दी,
मैं अगर इत्थे रुक जाना और एदा बच्चा मर गया, पुत्र मर गया, ओनू ते मैं जिंदा नहीं कर पावांगा। लेकिन अगर मैं लेट भी हो गया तो हो सकता गुरु साहब ते मिल ही जान। ते चला गया उस बुढ़ी माई नाल वैद, दवा दारू की, इलाज किया, वापस आया। घर वापस आया ते दसम पातशाह विराजमान, गले लगा लिया। गुरु दे वचन काम करते हैं, गुरु दी नजर काम करती है, ते कोई अडंबर नहीं करने पैंदे। बस उन्हां दी मेहर दी नजर हो जाए ते ओहियो दवाइयां लग जांदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ नहीं लगदियां। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੈਦ ਡਿੱਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਾਹੂ ਜੁਗਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਈਏ ਧਰਮ, किसी जुगती नाल सानू धर्म नहीं मिल सकता। नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर करम, जिहदे कर्मां च पहले दे लिखिया होया है ओनू पता चलदा है धर्म की है, फिर वो धर्म दा पालन करदा है। हुण वो दसवंध ते पहले भी चढ़ा रहे सी, दर्शन भी कर रहे सी, लेकिन ओनू गुरु साहब ने सच्चा धर्म सिखाया। मानवता दा सच्चा धर्म की है, दूजियां ते दया करनी, सेवा करनी। ते जे असीं दया नहीं करदे और असी इधरों उधरों लुट के जाके गुरु घर च दसवंध दे देने आ, ते की वो प्रवान होएगा? कि गुरु उस दसवंध नूं प्रवान करेगा? सोचण दी लोड़ है, जागण दी लोड़ है। बाबा नंद सिंह जी दे जीवन दी एक बहुत प्यारी घटना आंदी है। प्रसाद दा भोग लगदा सी श्री गुरु नानक देव जी नूं, ते एक दिन जिस वेले बाबा नंद सिंह जी ने भोग लगवाया ते भोग नहीं लगा। आनंद चमत्कार च लिखी हुई है घटना कि श्री गुरु नानक देव जी ने जिहड़ी रोटी दी बुरकी सी वो बाहर कट दी। बाबा नंद सिंह जी बड़े रोह विच बाहर आए कि यह प्रसाद किन्ने लियांदा। पहले तो कोई नहीं बोलिया, जिसले उन्होंने बड़े रोह विच किया कि अगर नहीं दसोगे तो जिन्ने लियांदा वो अपनी करनी आप भुगतेगा। ते फिर एक बंदा खड़ा होया, उन्हें क्या प्रसाद मैं लियांदा, किस भावना नाल लियांदा, किस तरह लियांदा? फिर उन्हें क्या, मैं किसी गरीब को 50 रुपए लैने सी, ते मैं 50 की जगह 0 और लगा के 500 कर दिता, ते मैं ओदे ते केस मुकदमा पाया। ते मैं ਇਹ सोचिया कि जे मैनू 500 रुपये मिल गए तो मैं प्रसाद चढ़ावांगा। वो हार गया मुकदमा, मैं जीत गया, मैनू 500 रुपये मिले, मैं वो 500 रुपये जेडे मैनू मिले सुख ना सुखी सी मैं वो प्रसाद चढ़ाया। तो उन्होंने बड़ा उस रोह किया, उस सिख ते गुस्सा अलग है, गुस्सा नहीं किया, रोह किया, रोष किया कि तू श्री गुरु नानक देव जी ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਹਰ ਦਿਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਵਾਣਾ। तो उस दिन तो कहते ने कि उत्थे उन्होंने कहा बाबा नंद सिंह जी ने कि अज तो बाद भोग दा जिहड़ा थाल बनेगा श्री गुरु नानक देव जी के प्रसाद इत्थे ही बनेगा, किसी दे घरों नहीं आएगा। फिर उन्होंने कहा उन्होंने जा ओदे पैसे वापस करके आ, जेड़े ले ने तू ओदे कोलों ज्यादा ब्याज समेत वापस करके आ, ते ओदे कोलों जाके माफी मांग, तां तैनूं गुरु नानक पातशाह माफ करनगे। फिर वो बंदा गया, उन्हें पैसे वापस किते ते माफी मंगी। सोचण दी लोड़ है असीं की कर रहे हैं, कित्थे कित्थे असीं गलतियां कर रहे हैं। जे असीं किसी दा हक लुट के मार के किसी नूं सता के ते उथों कमा के असीं आके गुरु घर विच दे रहे हैं, ते कि गुरु परवान करेगा उन्हां चीजां नूं? गुरु दे घर विच दया है, ते जिथे सारे हीले वसीले मुक जांदे ने ना उत्थे गुरु साई हुंदा। भाई साहब भाई रणधीर सिंह जी अखंड कीर्तनी जत्थे दे संस्थापक जिहड़े ने, उन्हां दे जीवन दी भी घटना आंदी है। ज्यों ज्यों साधना करने चेतना जिहड़ी साडी ओहदा विस्तार हुंदा है, त्यों त्यों इन्हां अध्यात्मिक विषयां दी समझ आंदी है। जे साडी चेतना दा ही विस्तार नहीं होया साधना करके
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਤਾ ਰਟਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਸਨ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਲੇਰੀਆ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮਲੇਰੀਆ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲੇਰੀਆ ਬਹੁਤ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਪਤਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਜੇ, ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਇਹ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਪਾਈ, ਮਨ ਉਹਾਂ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟੀ। ਕਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਖੰਡ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਝਲਕਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਖੋ ਬੈਠੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਪਕੜੀਏ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਕੜੀਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਸਹਾਈ ਏ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਭਾਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੂੰ ਰੱਖਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਅੰਧਕੂਪ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਤਿਨ ਸਿਮਰਿਓ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ, ਅੰਧਕੂਪ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਭੂਲੇ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਕੀਨੀ, ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾ।
फिर ओदे गुरु ने बंधन खोल दिते, मुक्त कर दिता, ओनू सारे पासे परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दिता। अमृत नाम पिया मन तृप्तिया, आघाए रसन चखा। फिर ओने अमृत नाम पीता, मन जेड़ा ओ शांत हो गया, ते जेड़ी रसना है ओने अमृत दा स्वाद रसना ने लैके रसना भी संतुष्ट हो गई। कहो नानक सुख सहज मैं पाया, गुर लाही सगल तिखा। सहजे ही गुरु नू पा लिया ते सारियां प्यास सारियां तृष्णावां बुझ गईयां। बानी पढ़ो, बानी ते विचार करो, ते बहुत तुहानू सोझी आएगी, समझ आएगी कि गुरुआं ने ते एक एक चीज पूरने पाके दिते ने। समझण दी लोड़ है, सिखण दी लोड़ है, और समझ तां आएगी जिस वेले असी ध्यान करांगे, साधना करांगे। ते जेड़े ब्रह्म ज्ञानी हुंदे ने ओ परमात्म चेतना विच रहिंदे ने, जिन्हों अज दी साइंटिफिक जेड़ी अज दे जेड़े भाषा विच कहा जांदा लिविंग इन गॉड कॉन्शियसनेस, असी कहने हैं बच्चे परमात्मा दे रूप ने, ते इसे तरह ब्रह्म ज्ञानी भी उस परमात्म चेतना विच रहिंदे ने। ते जिन्ने परमात्मा दी टेक लई, परमात्मा दा सहारा लिया, ओनू कोई दुख छू भी नहीं सकता। ऐन मौके ते परमात्मा आके ओदी मदद करदा है। एक बहुत प्यारी घटना है, कहानी। एक बच्चा सी, बचपन च ही ओनू किसी ने समझाया कि परमात्मा दा नाम लेना चाहिए, वो परमात्मा दा नाम लैन लग गया, रब दे पासे चल पिया। बहुत गरीब परिवार है, 7 बच्चे ने, खान नू नहीं है, गरीबी बहुत है, और उस देश का जेड़ा राजा है ओदा कोई पुत्र नहीं। ते ओनू जेड़े राजगुरु ने उन्होंने सलाह दी ज्योतिषिया ने कि तू अगर किसी दे अपनी किसी कोई अपना पुत्र दे तेनू और तू ओदी बलि चढ़ाए तां तेरे घर औलाद हो सकती है। ते राजा ने कहा मेरा मन नहीं मनता, मैं अपने घर मेरे पुत्र होवे ते मैं किसी दे पुत्र दी बलि चढ़ा दियां। पहले जमाने च नर बलि चलदी सी। ते राजा ने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता। फिर मंत्रियों ने समझाया कि राज दा वारिस किस तरह मिलेगा, तो तू ढंडोरा पिटवा दे कि अगर कोई अपनी खुशी नाल अपना बच्चा दे दे फिर तो कोई दिक्कत नहीं, ते फिर ओदी असी बलि चढ़ावांगे। ते राजे ने ढंडोरा पिटवाया, ते जेड़े एदे मां प्यो सी बच्चे दे, इन्हां ने सुनिया साडे ते 7 बच्चे ने, गरीबी इन्नी है, इक नू दे दिन्ने आ, साडी गरीबी कट्टी जाएगी। ए ते कुछ करदा नहीं, निखट्टू जिहा, ए ते कुछ करदा नहीं, रब दा नाम ही लैंदा सारा दिन, काम कार कोई करदा नहीं, तेनू दे दिन्ने। उन्हां ने ओदा पिता लै गया और उन्ने कहा कि राजा तू साडा पुत्र लै लै। राजे ने वो पुत्र उन्हां दा बेटा लै लिया, ते उन्हां नू धन नाल तोल दिता, धन नहीं धन करता, उन्हां नू दे दिता धन। हुण जिस वेले वो बलि देन तो पहले पूछया उन्होंने कि बच्चा तेरी कोई अंतिम इच्छा है? उन्हें क्या हाँ है, मैं खेलना चाहना स्नान करके। उन्हें स्नान किया ते खेलन लग गया। उन्हें 4 ढेरियां बनाईया। पहली ढेरी दे अगे खड़ा होया, कुछ मुंह च बोलिया ते उस ढेरी नू लत मार दी। दूजी ढेरी दे अगे खड़ा होया, मन विच कुछ बोलिया, फिर उस ढेरी नू भी ढाता, लत मार दी। तीजी ढेरी अगे खड़ा होया, फिर तीजी ढेरी भी ढाती, लत मार दी। फिर चौथी ढेरी अगे खड़ा होया ते कुछ मन विच बोलिया, फिर उस ढेरी की परिक्रमा की, मत्था टेकिया, ते उन्हें कहा हुण तुसी करो जो करना, मैं जो करना सी कर लिया। ते राजा बड़ा हैरान होया कि तू कीता की? ते राजे ने कहा तू दस पहले मैनू कि तू कीता की है। वो कहने लगे मैं अपना काम कर लिया, तुसी अपना काम करो। कहने लगा राजा नहीं, तू मैनू दस पहले कि तू 4 ढेरियां बनाईया, 3 तू लत मार के तोड़ दित्तियां, चौथी नू तू मत्था टेकिया, दा अर्थ की है? ते उस बच्चे ने कहा कि पहली ढेरी बनाई मैं माता पिता दी, बच्चे दे माता पिता रक्षक होंदे ने, ते मेरे ते माता पिता भक्षक बन गए। ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ गए, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता है कि मेरी बलि दे देनी है, तो ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ के चले गए। ਤੇ माता पिता ने ते मेरी रक्षा नहीं की, ते मैं पहली ढेरी ਢਾ ਦਿੱਤੀ। दूजी ढेरी ਹੁੰਦੀ है राजगुरु, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ गुरु ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि प्रजा दी राजा दी ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੱਸਣਾ कि धर्म की है ते अधर्म की है। ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ कि बलि चढ़ा, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ रक्षा किस तरह करनगे? ਤੇ मैं ਉਹ भी ढेरी लत मार के तोड़ दी। तीजी ढेरी राजा दी,
राजा दा काम है प्रजा दी रक्षा करना, ते राजा ही ते मेरी बलि चढ़ा रहा है, ते राजा तो मैं की उम्मीद करा। ते मैं वो भी ढेरी लत मार के तोड़ दी। चौथी ढेरी मैं बनाई परमात्मा दी कि एना सारे ने ते मेरा साथ छाड़ दिता, लेकिन अजे भी वो है ऊपर मेरे सिर ते रक्षा करन दी। आखिरी श्वास ते भी कुछ भी हो सकता है, वही बचा सकता है, वही मेरी रक्षा कर सकता। हुण ओहदे तो बिना ते मेरा कोई है ही नहीं। ते मैं इस वास्ते उस ढेरी नूं नमस्कार कीती, ओहदी परिक्रमा कीती कि हुण तू ही एक मेरा आसरा है और मेरा कोई आसरा नहीं। ते राजे दा मन बदल गया। राजे ने कहा ऐना ज्ञानी बच्चा एदी मैं बलि दिया, कल नूं मेरा बच्चा पता नहीं नलायक निकले लायक निकले, राह संभाले ना संभाले, एने ज्ञानवान बच्चे दी मैं बलि दे दिया, मैं एनू ही अपना पुत्र बना लेना। ते राजे ने उस बच्चे नूं सिंघासन ते बिठाया, अपना पुत्र घोषित कर दिता। ते किथे ते ओनू मारन लई ओदी बलि चढ़ान लै गए सी, ते किथे परमात्मा ने ओनू राजगद्दी ते बिठा दिता। परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन परमात्मा ते इन्ना साडा भरोसा होना चाहिए। साडा भरोसा ही डोल जाता है। सानू जरा जिहा कुछ होंदा है, अस ते तैयार ही बैठे हैं, कोई चॉकलेट देवे ते असीं चले जाइए नाल ओहदे। असीं भुल ही जाने आ कि एक ओहदा आसरा लेना है ते वो सब कुछ कर सकता है। वो करण कारण समर्थ है, ਉਹਦੇ बिना होर कोई नहीं है। ऐसे वास्ते श्री गुरु नानक देव जी ने बाणी जिस वेले उच्चारण की, सब तो पहला अखर एक ओंकार, एक ओदी ही सत्ता है, ओही सच है। ते जे ओदा जिन्ने आसरा पकड़िया फिर कदी पिठ नहीं लगन देंदा ओदी। अर्जुन कृष्ण भगवान नू मांग लिया, दुर्योधन ने सेना मांग ली, ते सारे तुसी जानते हो। जिदे वाल परमात्मा होगा ओदी हार हो ही नहीं सकती, ओदी हार हो किस तरह सकती है। जिस वेले परमात्मा नू याद करिए, परमात्मा सहायता करता है। जिस वेले हाथी ने पुकार की, जिस वेले ओनू मगरमच्छ खिंची जांदा सी नदी च, ते हाथी ने पुकार की, ते विष्णु भगवान ने आके रक्षा की ओदी। सानू पुकार नहीं करनी आती, असी गलत आसरे ढूंढ लेने आ, ते फिर असी परेशान होने आ, रोने आ। एक ओदा आसरा लो, सर्ब रोग का औखद नाम, सारे रोगां दी ओ दवाई है, उस तो वड्डा कोई नहीं है। ध्यान करो, बहुत सारे ऐसे उदाहरण ने। पीएमसी हिंदी ते तुसी आत्मा दी यात्रा देखते हो, सिर्फ ध्यान करके ही कैसियां कैसियां भयंकर बीमारियां तो छुटकारा पा ले। श्री हर कृष्ण ते आइए, जिस डिठे सब दुख जाए, सब दुख चले जाएंगे, क्योंकि दुख आंदे ने जांदे ने। सो जो मैनू समझ आया मैं तुहाडे नाल शेयर किया। मैं कोई कथावाचक नहीं है, मैं बार बार इस चीज का नखेड़ करनी है। मैं ते ओ भाव जिहड़ा इस शब्द दा ओनू पकड़ रही हाँ, ते ओ तुहाडे नाल साझा कर रही हाँ। सो तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद जी। तुसी ये वीडियो सारे नाल शेयर करो, अपने विचार, अपने सुझाव, अपने प्रश्न जरूर लिखो। फिर अगले नवे वीडियो विच एक नवे विषय नाल मिलांगे। तद तक सत श्री अकाल। देखते रहो चैनल नू, ध्यान करो, अपने आप ते भरोसा करो, अपने गुरु ते भरोसा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।